Hi everyone, in Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 9.2 part 1. So let's begin. See, earlier I thought that I'll be covering the 9.1, the entire syllabus in the single video, but eventually this Mendelian genetic topic got so many value additions, and there are like a lot many things and the concepts that I thought that I should explain to you, because this topic is very important for the UPSC syllabus perspective. Every now and then you will see UPSC is asking some or the other question from this particular section. So we will be studying the value additions along with the main topic, and those value additions are like the recent advances in the human genetics, then the exceptions of the Mendelism, because we'll be studying the law of inheritance given by Mendel. Then we'll see that what are the exceptions to this. Then of course Mendel ने जो theories दी थी, that was not recognized earlier but eventually got recognized. So we'll see how it happened and why it happened. Then we'll see this chromosomal theory of inheritance. Don't worry, as we'll move forward you will get to know everything in detail कि हम कौन सी चीज़ और क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है? So watch this lecture carefully, you'll be able to understand the concepts. Don't worry about that. Let's start with an example. See, there's a girl or a mother and there is a father. So what kind of children they might have? So what generally people tend to do, they try and match certain characteristics of the mother and certain characteristics of the father to say that so and so characteristic the child will have. So the child of the parent might be something like this. Then she can have a mix of eyes because she's having a blue eye, he's having a brown eye. So she might get a mixed eye maybe. And the hair type and the color also, she might get a mixed variety. But this does not define what science say, because you are not giving any scientific basis in telling like what kind of characteristics that they are going to have. Because हमने पहले भी पढ़ा हुआ है that there are like chromosomes obtained from mother and the father respectively. So there are certain characteristics or the traits or the allele that is being passed by mother and the same by father also at the same locus. मान लीजिए अगर ये characteristics is for the hair color, तो आपके उसी point पे chromosome के आपको वो certain alleles मिलेंगे, those are responsible for the hair color. And it depends कि whether they are the dominant one or the recessive one, कि चाइल्ड को कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आप दे सकते हैं. रिमेंबर हमने ये सारी चीज़ें अपने बेसिक्स में और अपने जो 9.1 हमने अभी तक कवर किया है उसके अंदर पड़ी हुई है. सो यू आर वेल वर्स्ड विद दिस. लेकिन ये वाली जो चीज़ है कि जो बच्चे हैं दे विल एक्वायर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड द फादर ऑन अ रैंडम ऑर्डर, ये एक्सप्लेन नहीं करता है व्हाट साइंस सेज. ठीक है, ये तो आप बोल रहे हो सकता है शी माइट लुक लाइक दिस, देयर माइट बी अ सर्टन रीजन फॉर इट, बट as of now we need to know what is that science behind it, why children acquire so and so characteristics from the mother and the father in so and so order. So who did this in the beginning? It was none other than the Roger Mendel. अब ये Roger Mendel ने क्या किया था? So let me tell you, he was not a scientist, full-fledged scientist नहीं थे ये. He was an Austrian monk and living in his monastery he observed all these things, and he was also very curious to know कि ये जो heredity है और जो traits है from parents to the children, how do they travel, how do they pass on, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से he started doing some kind of an experiments, and those experiments were mostly not done in lab but in the fields जहाँ इन्होंने इन pea plants को study किया. अब इन pea plants पे क्या study किया, कैसे study किया और उसके पहले लोग क्या किया करते थे हम उसके बारे में जान लेते हैं. देन वी विल डिग डीपर इनटू इट कि ये कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए. बट एज ऑफ नाउ आई होप यू आर गेटिंग सम आइडिया दैट व्हाई एंड हाउ वी आर गोइंग टू लर्न, बिकॉज आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, राइट? So before all these things happened, before Gregor Mendel did all these experiments with the pea plant, there were also some theories, because उसके पहले भी if you remember हमने चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ा है और प्री डार्विनिज्म भी थी. तो इन सारी थ्योरीज में अलग अलग तरीके की बातें की गई थी. तो वो क्या थी और उसके पहले चीज़ें कैसे चला करती थी, बिकॉज ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो पीपल माइट बी डूइंग सर्टन काइंड ऑफ एन थिंग्स टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ एन ट्रेट यू माइट बी हैविंग. उसी के एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं देयर वर फार्मर्स एंड देयर वर हर्डर्स
हु वर ट्राइंग टू डू सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हो सकता है किसी फार्मर को एक पर्टिकुलर टाइप के कैरेक्टर्स वाले प्लांट चाहिए हो, तो ही माइट डू सम हिडन ट्रायल, बिकॉज उस टाइम पे आपको पता नहीं था कि चीज़ें कैसे काम करेंगी, हाउ द थिंग्स विल वर्क ऑन, सो दे माइट डू सम हिडन ट्रायल। और उसी हिडन ट्रायल में अगर उनको कुछ मिल जाता है, दैट इज़ वेल एंड गुड, because they cannot say if there's an X plant and there's a Y plant, what kind of a plant that they will obtain if they interbreed all these two plants. तो ये पता नहीं थी चीज़ें, रिजल्ट क्या होने वाला है ये सारे भगवान भरोसे चल रहा था, राइट, मतलब टू बी लाइक इन लेन टर्म्स। नाउ ये सारी चीज़ें इसलिए भी पॉसिबल नहीं थी क्योंकि आप देखेंगे कि साइंस में धीरे धीरे एडवांसमेंट हुई है। आज के डेट में यू सी सुपर कंप्यूटर्स एंड ऑल दोज थिंग्स दैट वर नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग दी 1800, और 1800 से 1900 के बीच में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स धीरे धीरे शुरू हुए। And at that point of time, during the 1890s, there was an invention of better microscope. Although there were microscopes before these time also, but उतने powerful नहीं थे। और इन better microscope और you can say the powerful microscopes के आने के बाद से धीरे धीरे आपके जो अलग अलग सेल डिविजन्स के प्रोसेसेस थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के जो प्रोसेसेस थे, इन पे बायोलॉजिस्ट ने धीरे धीरे ध्यान देना शुरू किया। एंड टुडे वी सी कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल कम अप वेरी ग्रेजुअली, राइट, धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें होती गई, और आज हम जो भी चीज़ देख रहे हैं वो उस तरह से हमारे सामने आई है। सो देन आपके जो ग्रेगोर मेंडल थे, एज आई टोल्ड यू, ही वॉज नोन एज एन सेंट्रल यूरोपियन मॉन्क और ऑस्ट्रिया में रहते थे, वॉज द ओनली वन हु गॉट इट मोर और लेस राइट, क्योंकि बाकी सारे तो अपने अलग अलग थ्योरीज दे रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, और जो अपने रिसर्चर्स भी थे उनका भी ध्यान काफ़ी इस तरफ जा रहा था कि ये हेरिडिटरी ट्रेट्स होते कैसे हैं, जाते कैसे हैं, लेकिन कोई भी एक वैलिड एजम्पशन या आइडिया या हाइपोथेसिस लेके नहीं आ पाया था। ग्रेगोर मेंडल ने कुछ चीज़ें बताई दैट ही गॉट मोर और लेस राइट, एंड व्हाई वी आर सेइंग मोर और लेस राइट, बिकॉज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि ग्रेगोर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बाद दी गई थी, ऑल्दो दे आर लाइक ट्रू टू मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम वो देखेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड कि ये सही है, बट ऐसा भी नहीं है कि दैट इज लाइक 100% ट्रू, मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इन्होंने अपनी जो आइडियाज़ थी ही पब्लिश्ड ऑल दोज इन 1866, बट इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली, बिकॉज नीदर ही वॉज अ साइंटिस्ट नॉट डूइंग सम काइंड ऑफ लैब एक्सपेरिमेंट्स, बड़े बड़े वो नहीं कर रहे थे वैसे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जब हम देखेंगे कि क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया तो उस टाइम पे हम डिटेल में जान लेंगे। अभी के लिए आप जान लीजिए 1866 से 1900 के टाइम पीरियड के बीचों बीच इनको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिली। एंड दोज ऑफ यू हु हैव वॉच्ड द बेसिक्स वाला लेक्चर ऑफ द 9.1 ह्यूमन जेनेटिक्स का जो सबसे पहला लेक्चर था, उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट हाउ द टाइम लाइन गोज फ्रॉम ग्रेगोर मेंडल टू वेरियस अदर एक्सपेरिमेंट्स, और नहीं भी देखिए तो हम आज भी उसको थोड़ा टच अपॉन उसमें करेंगे ही, तो यू विल गेट टू नो, ठीक है। और इन्होंने ये सारी स्टडीज़ रिसर्च जो भी थे ये अपने पाइसम सैटिवम दैट इज़ द पी प्लांट, इसके साथ किए थे। अब वो क्या क्या स्टडीज़ थे, कैसे कैसे थे, विल सी इवेंचुअली, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बताई गई है, लेकिन अभी के लिए आप इसके अंदर ना जाएं। दिस इज़ फॉर दोज ऑफ यू हु आर मेकिंग नोट्स, क्योंकि आपको नोट्स में सीक्वेंस में लिखा होना ज़रूरी है, बट आगे हम जैसे पढ़ेंगे विल कवर ऑल दीज थिंग्स। अब इन्होंने जो ये स्टडीज़ करी थी अपॉन दी पी प्लांट, तो ही बेसिकली स्टडीज दीज 7 फॉर्म्स। अब ये 7 फॉर्म्स क्या क्या थे, बिकॉज सी जब हम एलील्स की बात करते हैं, सो एलील्स आर द वन विच हेल्प्स अस इन एक्वायरिंग डिफरेंट ट्रेट्स, राइट। जो हमने कोको कोला का एग्जाम्पल लेके समझा था दैट इफ कोको कोला इज अ जीन, देन देयर आर वेरियस वराइटीज ऑफ कोक्स, लाइक आपके डाइट कोक होते हैं, देयर आर लाइक XYZ अदर कोक्स ऑल्सो, क्लासिक कोक भी बोलते हैं, और भी कुछ अलग टाइप के कोक्स होते हैं, तो दे आर ऑल व्हाट एलील्स, राइट। एक जीन के अलग अलग एलील्स हो सकते हैं। तो सपोज कि आपके आई कलर है, आई कलर का एक जीन है, तो उसके अलग अलग एलील्स हो सकते हैं, फादर से आपको ब्लू कलर मिल सकता है, मदर से आपको ब्राउन कलर मिल सकता है, सपोज, ठीक है, ब्लू एंड ब्राउन। तो यही सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो सेम गोज विद द पी प्लांट ऑल्सो। पी प्लांट में भी हो सकता है सीड्स का कलर आपको येलो दिखे, हो सकता है आपके सीड्स ग्रीन कलर के भी हो, सीड्स में भी राउंड एंड ग्रे, सीड्स में भी वाइट एंड रिंकल्ड ऑल्सो। उसी तरीके से फ्लावर्स के भी अंदर आपको वाइट फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे पी प्लांट में, एंड वॉयलेट फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे, और अलग अलग पॉट्स के फॉर्म में भी और कलर में भी। देन इवन द प्लेस ऑफ फ्लावर्स भी, उसमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, एंड इवन द साइज ऑफ द स्टीम कैन बी लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो जब आप 2 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसमें इन्होंने इन 7 जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स है इसी को मैच करके देखा था, ठीक है।
तो हम जब देखेंगे ड्यूरिंग दिस लेक्चर, तो वी विल टेक अप दिस साइज एंड द कलर ऑफ फ्लावर। हम इन दोनों को लेके स्टडी करेंगे और बाकी भी जो है सारी चीज़ें वो उसी तरह से होंगी, बट आपको वो बाकी आप दो भी याद रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपको लिखना होगा मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में तो आप एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं, आप साथ के साथ सेम चीज़ें नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम साइज और कलर ऑफ फ्लावर को लेके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और देखेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे नहीं, आई टेल यू, आई एक्सप्लेन यू with the help of these two experiments, then rest will having similar characteristics, ठीक है। और इनके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे वो भी हम आगे देख लेंगे। देन एक ब्लेंडिंग थ्योरी थी जो कि आपके 19th सेंचुरी के जो कुछ साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दी गई थी और बेसिकली दैट वाज एक्सेप्टेड। तो ये ब्लेंडिंग थ्योरी क्या थी? ब्लेंडिंग थ्योरी बेसिकली आपकी यही कहती है, सपोज देयर इज अ रेड फ्लावर एंड देयर इज अ वाइट फ्लावर, तो अगर आपसे भी जनरल टर्म्स में पूछा जाए कि वाइट और रेड फ्लावर का अगर हम इन ब्रीडिंग करेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ एन फ्लावर दैट यू विल ऑब्टेन, तो दैट इज पिंक फ्लावर, इट्स एज इजी एज इज, राइट। लेकिन अब इसके पीछे क्या तर्क है, क्या वो तर्क है, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, वी आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन। और ये वाली भी जो चीज़ है कि हर जगह पे लागू नहीं होती है। मे बी इट कैन वर्क इन दिस केस लाइक रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर विल गिव यू पिंक फ्लावर, बट इट मे नॉट बी ट्रू फॉर अदर केसेस, और दैट इज वाई दिस ब्लेंडिंग थ्योरी इज ऑल्सो लाइक समवट नॉट वेरी ट्रू। और ये ब्लेंडिंग थ्योरी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देयर इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम दी मदर, देयर इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फादर, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स सर्टेन ऑर्डर में जिसको आप बता नहीं सकते कितना पास होगा और कैसे पास होगा, तो उस तरीके से पास ऑन होता है टू द जाइगोट एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनहेरिटेड। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें, दिस इज द बैकग्राउंड अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब व्हाट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स? अब हम चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे आपके लिए, ये सारी चीज़ें वही हैं जो आई टोल्ड यू जस्ट राइट नाउ कि 1866 में उन्होंने प्रपोज किया था, देन 1900 में फिर से डिस्कवर किया गया था। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं ना, उनके लिए सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है। अब ये एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने ये जो पी प्लांट और पाइसम सैटिवम पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इट वॉज डन फॉर ओवर 7 years एंड बिटवीन 1856 to 1864। और इसके अंदर इन्होंने 2 मेन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो 2 मेन एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे? फर्स्ट वॉज ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट एंड सेकेंड वन वॉज ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। अभी नहीं समझ में आ रहा है, नॉट टू वरी, जब आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये पी प्लांट ही क्यों यूज़ किया था, इसके पीछे भी अपना रीज़न है, बिकॉज पी प्लांट में भी और जो आपका एक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की आप बात करते हैं या अदर जो जनरली हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इट फॉलोज द सेम पैटर्न। ऑल्दो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग हो सकते हैं बट पैटर्न्स सेम होते हैं। बिकॉज यू मे आस्क कि हम ये जो पी प्लांट के ऊपर के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, हाउ फीजिबल इट इज़ फॉर द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज अल्टीमेटली तो हमें जेनेटिक्स ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए सो कॉल करना है, राइट, बट इट इज़ एप्लीकेबल टू द ह्यूमन एज वेल। जैसे कि आप देखिए पी प्लांट के अंदर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके पास भी होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे कैन ईदर सेल्फ पॉलिनेट देमसेल्फ और क्रॉस पॉलिनेट विद अनदर प्लांट। और ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। दैट इज़ वॉट बीइंग रिक्वायर्ड इन द एक्सपेरिमेंट्स, जो कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब सपोज क्या, ये तो एक फ्लावर ही है, सो सपोज दिस इज़ अ फ्लावर और ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिसको आप ये पॉलेंस है, राइट, ये पॉलेंस है, ये पॉलेंस आपके इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब जाते हैं तो दे डू द पॉलिनेशन एंड अल्टीमेटली द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, राइट। ये इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं द फ्लावर्स। अगर यही वाले पॉलेंस आपके दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। अगर ये सेम फ्लावर में जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द प्योर ब्रीड, यू कैन से द प्योर ब्रीड प्लांट। जो आपके इन पॉलिनेशन से जो सीड्स निकलेंगे, ऑफकोर्स ये पॉलिनेशन होगा, कुछ सीड्स जनरेट होंगे और इन सीड से जो फिर अल्टीमेटली प्लांट निकलेंगे, दे आर नोन एज द प्योर ब्रीड प्लांट। और क्रॉस ब्रीडिंग क्या हो जाएगा? जब ये वाले मेल स्ट्रक्चर्स आपके दूसरे फ्लावर में जाके पॉलिनेशन करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं ना? अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हमने यहाँ पे देख लिया 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट्स थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। Now let's have a look at the similar example that we took in the beginning. Here's the mother with a blue eye, and here's a father with a brown eye, and here's a child with a blue eye. So now who's gonna explain us that why this girl is having a blue eye? That
the experiment that we are going to see, the monohybrid cross experiment, that will help us in answering this question. All right, so let's begin. See, I already told you what are pure breeds, right? Pure breed यानी कि आपके जो breeding कराई गई है, that is amongst the same flower, ठीक है, or the same plant. So this is that, and this is a taller one, or you can say the tall plant, and this is the dwarf one. All right. So what Mendel did in his first experiment, he cross-breeded this taller and this shorter or the dwarf plant. तो इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग कराई. सो जो जनरल अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम की, इफ यू टॉक अबाउट व्हेन देयर वाज नो सच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट वुड पीपल माइट थिंक कि ओके, अगर ये लंबा पौधा है एंड ये छोटा पौधा है, अगर हम इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो वी विल गेट समथिंग अ मिक्स ऑफ इट, राइट. कुछ हो सकता है मीडियम साइज का पौधा हमें मिल जाए. ओके, ये हो सकता है लोगों ने ऐसा सोचा होगा. बट व्हाट मेंडल गेट एंड व्हाट मेड हिम सरप्राइज, विल सी. मेंडल को टॉलर प्लांट्स मिले, 1 2 3 बहुत सारे, ठीक है. मतलब उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग कराई, डिपेंडिंग अपॉन कितने सीड्स थे, तो उनको जितने भी प्लांट्स मिले, वन थिंग here you need to mark is जितने भी plants थे, they were all having taller characteristics. लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग किसके साथ कराई गई थी? with the dwarf plant. Okay, to understand this he did further experiments, और उन्होंने इस वाले जो पहला एक्सपेरिमेंट में ये जो फर्स्ट स्टेज था, इसको नाम दे दिया F1, ठीक है. तो लेट इट बी हियर, हम F1 पे दोबारा से आएंगे, बट अभी के लिए याद रखिए कि टॉलर और ड्रॉफ का उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग कराया, ही गॉट ऑल द टॉलर प्लांट्स. देन इन द नेक्स्ट स्टेज, और ये जो F का यहाँ है, दैट इज नोन एज द फिलियल. बेसिकली आप इसको सन या डॉटर बोल सकते हैं, ठीक है. तो ये जो फिलियल्स थे इनके, इन्होंने यहाँ से एक फिलियल उठाया, सपोज एक ये पहला वाला ये पौधा उन्होंने उठाया, और इन्होंने इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई, ठीक है. यहाँ पे तो क्रॉस ब्रीडिंग हो रही थी, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ ब्रीडिंग इन्होंने कराई इस वाले प्लांट की, ठीक है. और वो कहाँ लेके गए? वो सेकेंड स्टेज पे लेके गई. सो हियर इज द प्लांट, जो कि वो ये फर्स्ट जनरेशन से लेके आए थे, फ्रॉम दिस फर्स्ट जनरेशन, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है ना चीज़ें? सो नाउ इस वाले प्लांट की जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई गई, सो व्हाट ही गॉट अगेन मेड हिम सरप्राइज्ड. हियर ही गॉट different plants of different size. Some were taller, like the one he breeded, and some of them were having the shorter characteristics also. अब यहाँ पे तो obvious सी बात है, anybody can think कि इधर तो चलिए हमने जब कराई थी first stage में, here you have the taller and the dwarf plant, तो हमें तो यहाँ पे कोई dwarf नहीं मिला. बट जो सेकेंड वाली जनरेशन थी आपकी, वहाँ पे तो एक भी ड्रॉफ के साथ आपने ब्रीडिंग भी नहीं कराई, इवन दो यू गॉट द ड्रॉफ वन. तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? और इस वाले स्टेज को उन्होंने नाम दे दिया F2, ठीक है. यहाँ तक अभी तक चीज़ें क्लियर है. देन गेटिंग बैक टू द फर्स्ट स्टेज, अब हम यहाँ पे फिर से बात करते हैं. तो मेंडल ने थोड़ा सोचा विचारा, एंड देन ही केम आउट विद द कंक्लूजन कि इट मे हैपन कि जो आपके प्लांट्स है, वहाँ पे जो टॉलर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डोमिनेट कर रहा होगा ऑफ द शॉर्टर वन. अब आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि उस समय डोमिनेंट और रिसेसिव ऐसे कोई चीज़ों का पता नहीं लगाया गया था. तो ये टॉलर और ये सारी चीज़ें वहीं से निकल के आई, डोमिनेंट रिसेसिव, हम उसके बाद से ही जेनेटिक्स में पढ़ना शुरू करते हैं. लेकिन अभी तक तो इनको यही लगा कि देयर माइट बी सम ट्रेट्स, or might be the taller trait is dominating than the shorter one, और इसको उन्होंने बोल दिया कैपिटल T को dominant, ठीक है. ये dominant trait हो सकता है जो कि dominate कर रहा है, and this is the recessive one, ठीक है, जो कि इस dominate के प्रभाव में आके it got settled down. alright, so ये dominate characteristics है and ये recessive characteristics है. हो सकता है इसके वजह से ये जो आपके प्लांट्स निकल के आए हैं वो टॉलर ही देखने को मिल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डोमिनेंस केम, ठीक है. अब ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव करने के लिए आपको पहले सेकेंड वाले लॉ के बारे में भी एक ब्रीफ जानना होगा, देन अगेन वी विल कम बैक टू दिस.
अब क्या हुआ, इसके अंदर जो आपके F2 वाले जेनरेशन थे, F2 वाले जेनरेशन में तो हमने देखा कि आपको कुछ शॉर्टर प्लांट मिले हैं और कुछ लॉन्गर प्लांट्स भी मिले हैं। तो और हमने ये भी देखा था कि ये वाले जो है ये आपको F1 से लेके आया गया था, ही केम फ्रॉम द F1। तो इट मे हैपन, जो अभी हमने बात की कि डॉलर तो वहाँ पे डोमिनेंट था, लेकिन हो सकता है कि जो डॉफ प्लांट से उसको कोई अलील मिला हो, दैट इज द स्मॉलर टी, दैट इज द रेसेसिव वन। एंड सिंस दिस प्लांट is having both the characteristics, the capital T and the smaller t, where the capital T is dominating and the smaller t is the recessive one, और इसकी आपने सेल्फ ब्रीडिंग कराई है, इसके वजह से हो सकता है यहाँ पे आपकी जो सेलेक्टिव चीज़ें हुई हैं, सेलेक्टिव ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, और उसके वजह से इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। अब ये कैसे दिया, इसको अगर आप पुनेट स्क्वायर से प्रूव करें देन थिंग्स विल बी मच क्लियर। सो हियर इज द पुनेट स्क्वायर, ये हमने पहले भी बनाना सीखा हुआ है, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, बिकॉज ये टॉलर और डॉफ प्लांट के दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग से बना है। तो हियर यू कैन राइट कैपिटल टी, हियर यू कैन राइट स्मॉल टी, देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या निकल के आएगा, आई एम नॉट जस्ट रिपीटिंग, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, अज्यूमिंग कि आपको ये पता चल रही है, ठीक है। तो अब इस केस में देखिए, पहले वाले केस में तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या निकल के आएंगे, वो कैपिटल टी निकल के आएंगे। दूसरे वाले में अगेन कैपिटल टी विल बी डोमिनेटिंग, थर्ड कैपिटल टी विल बी डोमिनेटिंग, एंड फोर्थ स्मॉलर टी है यहाँ पे, यानी कि ये रेसेसिव कैरेक्टर कहीं ना कहीं तो होगा। तो यानी कि आपके जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो क्या बन रहे हैं, 3:1। और यही चीज़ इन्होंने अपने प्लांट्स में भी ऑब्जर्व की थी, बिकॉज व्हेन ही लाइक बेसिकली काउंटेड द प्लांट्स, तो उन्होंने ये देखा कि जो शॉर्टर और टॉलर प्लांट का रेशियो था दैट वाज 1:3, और अगर आप टॉलर टू शॉर्टर बोले तो 3:1। एज यू मे सी, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया, बट बहुत सारे प्लांट्स थे, लेकिन उसमें हम रेशियो की बात करें, नंबर की नहीं। तो एज यू मे सी हियर यू हैव 3 शॉर्टर प्लांट एंड हियर यू हैव 9 टॉलर प्लांट। तो क्या हो गया रेशियो, 3:1। टॉलर टू डॉफ का आपका रेशियो 3:1 है, ठीक है। वही आपके पुनेट स्क्वायर से भी पता चल रहा है। सो दैट वाज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि आपके जो ट्रेट्स थे वो सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। तो अब इसी को एग्जाम्पल मान के हम अगर इस पहले वाले की बात करें कि ये जो टॉलर है और ड्रॉफ है, तो हमने बात करी थी, रिमेंबर दिस वाज द प्योर ब्रीड, और ये प्योर ब्रीड था, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हुआ था, यानी कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे दोज वर सिमिलर। तो हम मान लेते हैं चूंकि ये टॉलर है तो इसके कैपिटल टी ही रहे होंगे, और चूंकि ये डॉफ है, छोटा है, और ये भी एक प्योर ब्रीड है, तो दैट मीन्स इसके स्मॉलर टी होंगे, राइट। क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती तो जाहिर सी बात है आपको वो जो सेकेंड वाला लेवल था उस तरीके का कुछ रिजल्ट देखने को मिलता, मिक्स वैरायटीज देखने को मिलती, लेकिन वैसा तो है नहीं। अब अगर हम इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं और हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, तो व्हाट वी सी, कैपिटल टी फ्रॉम हियर, स्मॉलर टी फ्रॉम हियर। तो कैपिटल टी स्मॉलर टी फ्रॉम हियर टू हियर, देन कैपिटल टी एंड स्मॉलर टी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ तो आप देख रहे हैं इस पुनेट स्क्वायर के अंदर आपको सारे के सारे डोमिनेंट कैपिटल टीज ही देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू हैव ऑल द टॉलर प्लांट्स। सो दिस वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यूजिंग दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट व्हाट ही प्रूव्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अभी तक हमने ये जितनी भी सारी चीज़ें बात करी हैं, इट इज़ ऑल मेंशन आउट हियर एज यू मे सी। आई विल रिपीट इट थोड़ा बहुत आपके लिए, जिनको थोड़ी भी कसर बाकी रही हो समझने में, दे विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। कि उन्होंने 2 पी प्लांट्स ऑफ अपोजिट ट्रेट्स लिए, वन वाज शॉर्टर एंड वन वाज टॉल, एंड क्रॉस देम, जो हमने पहले देखा था। देन ही फाउंड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग वेयर टॉल एंड वेयर कॉल्ड द F1 progeny, ये भी हमने देखा। Then he crossed F1 progeny and obtained both tall and shorter plant in the 3:1 ratio that we just saw. And Mendel even conducted this experiment with other contrasting traits. वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि we will use the example of the taller and shorter one, लेकिन वो आपके जितने भी अलग 7 characteristics जो mentioned थे उन सभी में लागू होंगे, like the yellow pea plant or green pea plant, round or wrinkled, इन्होंने सबके साथ करके देखा। He did it for 7 years, right? तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, मतलब सभी के ऊपर करके देख लिया था वेदर इट इज़ फिटिंग और नॉट, एंड ही फाउंड कि जो उनको रिजल्ट इस टॉलर और शॉर्टर में मिला है वही रिजल्ट्स उनको सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिली। एंड इन ऑल केसेस ही फाउंडेड द रिजल्ट्स वर सिमिलर, फ्रॉम विच ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द डोमिनेंस।
जो हमने चीज़ें ड्रॉ करी हैं वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड वे में दी गई हैं, ठीक है। आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन बिकॉज सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। बस यहाँ पे इन्होंने ये सीड वाला एग्जाम्पल लिया है, येलो सीड्स एंड ग्रीन सीड्स। सो दैट इज़ वाई आप सीड वाला लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, आप टॉलर एंड डॉफ लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, और आपके अलील्स में आपको बस डिफरेंट करना है, जैसे इन्होंने y and smaller y and capital Y use. By now, I assume that you are well versed with what is this monohybrid cross experiment and what purpose it solved, what laws it gave out. It gave out law of dominance and law of segregation, right? Now the second experiment is of dihybrid cross experiment, as the name suggests, dihybrid. So here it was monohybrid, here it is dihybrid. That means he took two characteristics. Earlier we took an example of tall and dwarf plant. एक ही हमने characteristics लिया था. But now in the second experiment he took tall and dwarf plant along with some other characteristics. So say for example here we will take the color of the flower. ठीक है, flower and the color. There are two colors of flower. One was like magenta color and another one was white color, right? So we'll take that. तो पहले हमने एक characteristics को लेके experiment किया था. Now we'll do along with two characteristics. Let's see. Now you can explain why this girl is having a blue eye. It may be because her mother is having a dominant blue genes or traits or alleles, whatever you can say, and the father is having a recessive brown allele. Alright, so the blue got passed on or dominated, and that is why the girl is having blue eye. In this example, for like simplicity purpose, suppose this is a father and this is a mother, and since we are doing a cross fertilization, और ये जो characteristics है, this plant is having taller and the magenta color flower, and this plant having the shorter and the white color flower, और दोनों ही क्या है, pea plants है. इतनी चीज़ें हमें अभी तक clear है. तो since this taller plant is a pure breed and this shorter plant is also a pure breed, जैसा उन्होंने first experiment में monohybrid के type में जो first stage में experiments किए थे was with the pure breed, same goes here also. ठीक है, बस यहाँ पे है कि आपके characteristics दो हैं, but ये भी pure breeds ही हैं. Alright, so since this is a pure breed and this is the father and this is the mother, तो इन्होंने जब इनकी cross breeding कराई, so what he got, let's see. He got these. All are taller plants and having the magenta flower. And of course, there are many number of like plants. I just draw like 3 for simplicity sake. तो ये आपके F1 हो गए, ठीक है, the filials of the generation 1. अब इन्होंने जब क्रॉस ब्रीडिंग कराई and we saw that this is the father and this is the mother, और सारे के सारे जो आपके प्लांट्स थे, they all came out resembling the father. इसको आप सिंप्लिसिटी पर्पस से एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लीजिए. सपोज यू आर हैविंग टॉल figure, you are like taller and your father is also taller than your mother, who is having a dusky complexion, where your father is having a fairer complexion, as well as you are also having a fairer complexion. So what does that mean? आपके father भी fair है और taller है, and you are also tall and fairer, while your mother is shorter and with a dusky complexion. What does that mean? आपने जो traits थे, जो characteristics थे, वो क्या पैकेज डील में अपने फादर से लिए हैं? बिकॉज एज ऑफ नाउ जो हमने जनरल जेनेटिक्स अभी तक समझा है और जो भी चीज़ें हमने जानी हैं, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग वी नो वी एक्वायर्ड सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम योर फादर, सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर मदर. हो सकता है आपने फादर से ही दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ले ली हो, दे माइट बी डोमिनेंट टू यू, जिस वजह से आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए. लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, अगेन हमें थोड़ा अपने माइंड को उस लेवल पे सेट करना पड़ेगा, उस टाइम फ्रेम में सेट करना पड़ेगा जब ये डीएनए, क्रोमोसोम, इन सारी चीज़ों पे बहुत सारी स्टडीज़ नहीं हुई थी, जीन्स, ये सारी चीज़ें नहीं थी. इट वॉज बेसिकली डन सीइंग दी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. सो अगर आपके फादर मान लीजिए यहाँ पे, सॉरी आपके फादर नहीं, ये जो पी प्लांट है, इफ वी सपोज दैट दिस इज अ फादर एंड विच इज़ अ टॉलर वन, और ये प्योर ब्रीड है, यानी कि इनके दोनों ही जो जीन्स है वो टी यानी कि टॉलर होंगे, राइट. और कलर को हम मान लेते हैं इट्स बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई.
सिंस आपके जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें टॉलर और मेजेंटा है, दैट इज वाई वी फाइंड इट आउट दैट दिस मस्ट बी दी डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? तभी हम इनको कैपिटल में लिख रहे हैं. एंड दिस मदर इज हैविंग दी स्मॉलर t along with the smaller y for the white color flower. I hope कोई confusion नहीं है यहाँ पे. हम इसको थोड़ा सिंप्लिसिटी पर्पस से अगर और भी समझने की कोशिश करें, समझ लीजिए कि आप जो भी एलील्स होते हैं, जो भी ट्रेड्स होते हैं, जो भी जीन्स एलील्स आप जो भी बोल सकते हैं, आप एक अपने फादर से लेते हैं, एक मदर से लेते हैं, राइट? डिपेंड करता है कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, वो एप्लीकेबल होगा. तो अब सपोज यहाँ पे इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में सपोज देयर हम प्लांट के केस में बात कर लेते हैं, और द प्लांट का स्पर्म नहीं होता है. सपोज दैट दिस इज अ स्पर्म एंड दिस इज अ ओवम और एग. तो अगर यहाँ से ये स्पर्म लेके आया, चूंकि ये दोनों ही कैपिटल टी है तो कोई भी एक टी ले लीजिए, और ये मदर से यहाँ पे ये स्मॉलर टी लेके आया, ठीक है? देन देयर इज अनदर स्पर्म फॉर दिस वाई, ये आपके कैपिटल वाई लेके आया, और फॉर द एग यहाँ पे ये स्मॉलर वाई है. तो अगर ये फ्यूजन होता है दिस टू दिस, व्हाट विल हैपन? दिस विल डोमिनेट. फ्यूजन अगर इसका और इसका होता है देन दिस विल डोमिनेट, राइट? तो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर t और t एंड y in both the cases what will happen? The dominant one will remain there, right? तो ये तो अगर आपके दोनों मान लीजिए अगर पैकेज में भी आ रहे थे या अलग अलग भी आ रहे थे, अगर ये पैकेज में भी है तभी भी आपका t डोमिनेट करेगा, अगर ये अलग अलग भी है तभी भी आपका t डोमिनेट करेगा ही करेगा, ठीक है? बिकॉज दैट इज द डोमिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स. सेम गोज विद द कलर. सो ये जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, या जो भी ये आगे चल के दिया गया, ये पूरी तरह से यहाँ पे प्रूफ नहीं होता है, ठीक है? मेंडल वॉज स्टिल वंडरिंग दैट हाउ इट कैन हैपन कि आप जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एक पैकेज डील में ले सकते हो. सो टू फाइंड इट आउट मोर एंड टू डिग मोर इनटू इट, ही डिड व्हाट? ही अगेन सेल्फ ब्रीडेड वन ऑफ दीज F1, जैसा उन्होंने फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में किया था. ही सेल्फ ब्रीडेड दिस. इन्होंने एक प्लांट यहाँ से उठाया जो F1 वाले जनरेशन थी और उसको सेल्फ पॉलिनेट कराया और सेल्फ ब्रीडिंग कराई, यू मे से, इन दी F2 जनरेशन. नाउ एज वी सॉ यहाँ पे इस वाले जनरेशन में व्हाट दे हैव, सिंस दे वर प्योर ब्रीड, इसको आप TT एंड कैपिटल Y मान सकते थे, राइट? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस वॉज स्मॉलर t and smaller y. So when the cross breeding would have happened, तो इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इन प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? कैपिटल T, स्मॉलर t and this might happen, ठीक है? So this plant is having this genes, right? So since the self pollination happened, so now the possible case scenario that he saw was this, ठीक है? इनको इस टाइप के सिनेरियोज देखने को मिले when he did the self pollination of these F2 generation. So what are these? F2, ठीक है? So यहाँ पे देखिए what he observed, that the plants were having the taller as well as the magenta flowers. The plants were having taller as well as the white flowers. The plant were having smaller as well as the magenta flower as well. उनको shorter and white flowers भी देखने को मिले. Alright. Then he got confused. So again, हमने जब एग्जाम्पल से समझा, वी सॉ दैट कि अगर फादर टॉलर है एंड ही इज फेयरर ऑल्सो, एंड इफ यू आर गेटिंग बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स, डज दैट मीन दैट इट इज कमिंग इन अ पैकेज डील, ठीक है? तो अगर ये पैकेज डील आ रही है, सो फ्रॉम वेयर ऑल दीज प्लांट्स विथ टॉलर एंड वाइट फ्लावर्स एंड शॉर्टर एंड मेजेंटा फ्लावर्स आर कमिंग फ्रॉम? बिकॉज हम अगर वो मान के चले तो ये वाले सिनेरियो एंड ये आपके मेजेंटा वाले तो फिर भी प्रूफ हो जाते हैं. लेट्स सी हाउ. सपोज अगेन दिस इज स्पर्म एंड दिस इज द एग. ऑल्दो प्लांट के केस में स्पर्म एग नहीं मानना है, बट फिर भी हाँ चलिए हम मान लेते हैं. और अगर हम पैकेज डील को मान के चलते हैं, सो इफ द स्पर्म इज गेटिंग दिस, राइट, एंड द एग इज ऑल्सो गेटिंग दिस एज अ पैकेज डील, अनदर केस सिनेरियो इज दैट the sperm is getting this and the egg is also getting this, smaller t and smaller y. तो इस केस सिनेरियो में जब आप इनको क्रॉस ब्रीड करा के देखेंगे तो यू विल सी दैट इफ सपोज इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होती है, कैपिटल टी
तो प्लांट तो टॉल होगा ही, एंड वाई वाई है, डोमिनेंट होगा ही, तो यानी कि मेजेंटा होगा, तो ये वाला तो प्रूफ हो जाता है, ठीक है, दिस कैन हैपन। एंड सपोज इनकी क्रॉस ब्रीडिंग अगर होती है कैपिटल टी विद अ स्मॉलर टी, प्लांट क्या होगा, टॉलर होगा, एंड अगेन वाई डोमिनेंट होगा, सो ये वाली ही प्रूफ होगी। बट सपोज दिस स्मॉलर टी विथ स्मॉलर टी एंड वाई, इनके इस केस में क्या होगा कि आपके स्मॉलर टी विथ वाइट फ्लावर्स होंगे, स्मॉलर टी विथ वाइट फ्लावर, तो ये वाला भी आपका प्रूफ हो जा रहा है। बट फ्रॉम वेयर द हेल ऑल दीज कम्स फ्रॉम, ये वाइट फ्लावर टॉल वाले एंड द शॉर्ट वाले विद द मैजेंटा फ्लावर्स। सो इसको प्रूव करने के लिए ही डिड कि एक अजम्पशन उन्होंने ये माना कि ये ज़रूर पैकेज डील में नहीं आए होंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स वो एक ही पर्सन से अवेल कर रहे होंगे, इट माइट बी पॉसिबल दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पर्सन्स। तो अगेन अगर हम केसेस लेते हैं सेम, तो मान लीजिए अभी ये कैपिटल टी एंड स्मॉलर वाई, और ये वाला भी आपका कैपिटल टी एंड स्मॉलर वाई। दूसरा केस सिनेरियो क्या हो गया, स्मॉलर टी एंड स्मॉलर वाई, देन दिस स्मॉलर टी, सॉरी कैपिटल वाई एंड दिस स्मॉलर टी एंड कैपिटल वाई। अब इस केस में भी जब आप इनको क्रॉस ब्रीडिंग करा के देखेंगे तो यू विल ऑब्टेन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जो कि हम पुनेट स्क्वायर्स के अगर हेल्प से उसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी बहुत क्लमजी सी हो गई हैं। सो हियर यू कैन सी इन दिस पुनेट स्क्वायर दिस इज द सेम, यहाँ पे बस आपको कैपिटल वाई की जगह पे कैपिटल टी को एज्यूम करना है, कैपिटल आर के जगह पे यू हैव टू एज्यूम कैपिटल वाई, और सिमिलरली स्मॉल वाले के लिए भी वही सारी चीज़ें रहेंगी। तो आप इसको जब इंटरचेंज करके प्लॉट करेंगे तो यू विल सी कि इनके केस में भी वही सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, बिकॉज जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे दे वर ट्रू टू ऑल द थिंग्स दैट वाज देयर, जो भी उनके 7 ट्रेट्स थे सभी पे लागू हो रहे थे। तो जो इनके फिनोटाइप्स थे और बेसिकली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसमें उन्होंने ये पाया कि ये जो आपके मेजेंटा वाले हैं विद द टॉलर वन, उनका जो रेशियो है दैट इज 9:3:3:1। अब इसमें 1 क्या है, ये वाले स्मॉलर प्लांट विद द वाइट फ्लावर, वो आपके उनकी रेशियो 1 है, और ये टॉलर विद द वाइट फ्लावर्स और शॉर्टर विद द मेजेंटा, उनका रेशियो 3 और 3 है, एंड देन आपके मेजेंटा विद द टॉलर वन, उनका रेशियो 9 है, ठीक है। सो ही कंक्लूडेड कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये ट्रेड्स आपस में इंडिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं है कि वो पैकेज डील में आ रहे हो, दे वुड बी इंडिपेंडेंट, देन ओनली आपके ये सारे पॉसिबल केस सिनेरियो हो सकते हैं, अदरवाइज ये केसेस पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, और नहीं भी है तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हमने बात की है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को लेके, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रेजेंट करके बताई गई हैं, ऑलराइट। So this was all about the law of segregation, independent assortment and dominance. और as I told you already कि laws कुछ बोलते हैं और कुछ principles भी कहते हैं, तो you may refer as and when exam में जिस तरीके से भी पूछा गया हो, ठीक है। Then आपके जो भी चीज़ें हमने मेंडल के इनहेरिटेंस लॉ को लेके पढ़ी है, अगर आपको समराइज करना हो तो यू कैन समराइज इन दिस वे। सबसे पहले ग्रेगोर मेंडल, इन्होंने जेनेटिक पे स्टडी की, ही वाज अ मॉन्क एंड ऑल दोज थिंग्स दैट यू कैन राइट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम पेयर होते हैं एंड देयर एलील आर सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल गैमेट्स टू ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द ऑफस्प्रिंग, राइट। हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही तो बात करी थी कि सारी चीज़ें अपना अपना एक अलग अलग रोल प्ले कर रही हैं। डोमिनेंस में क्या था, जो आपके डोमिनेंट एलील है वो रेसेसिव एलील को मास्क कर देते हैं, और जो डोमिनेंट एलील होते हैं दे प्रोड्यूसेस द सेम फेनोटाइप इन द हेटेरोजाइगस एंड द होमोजाइगस। ये भी चीज़ हमने देखी थी, जो सबसे पहला वाला हमने एग्जांपल देखा था, राइट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हमने अभी अभी देखा है, एलील्स ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली टू द इंडिविजुअल गैमेट। ये रैंडमली होते हैं तभी हमें अलग अलग ट्रेट्स देखने को मिले। अगर ये बिल्कुल सीक्वेंस में और एक ही तरीके से और एक ही पेरेंट से होते तो यू माइट हैव गॉट लाइक वेरी फ्यूअर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स अभी हमने पढ़े हैं उनसे रिलेट करेंगे, यू विल बी एबल टू गेट इट, बिकॉज जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो पी प्लांट पे किए गए थे, बट यू हैव टू प्रेजेंट इन द वर्डिंग्स ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक्स, राइट। बट हम वो आगे ह्यूमन जेनेटिक्स में आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो भी देख लेंगे। बट बिफोर दैट यू नीड टू रिकॉल कि जो नॉर्मल हमारे प्रोसेसेस होते हैं ऑफ द रिप्रोडक्शन, उसमें मियोसिस एंड मायोसिस हम अक्सर सुनते हैं, राइट। मियोसिस और माइटोसिस, और मियोसिस और माइटोसिस क्या 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 होता है मैंने आपको पहले भी बताया, बट आई एम जस्ट
रिपीटिंग इट वंस अगेन, आपके जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपके फादर्स में होते हैं एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर, ये दोनों में से आपको 23 क्रोमोसोम्स मदर से मिलते हैं क्रोमोसोम्स, और 23 क्रोमोसोम्स फादर से मिलते हैं. दे बोथ मेक अ पेयर ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. यहाँ पे ये क्रोमोसोम की बात करें, पेयर की नहीं बात करें, यहाँ पे पेयर की बात करें और यहाँ पे भी पेयर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा. सो ये इस प्रोसेस को इज कॉल्ड दी मियोसिस इन सिंपल वर्ड्स, ऑल्दो इसमें बहुत सारे स्टेजेस भी होते हैं. देन जो आपके माइटोसिस होते हैं, जो एक जाइगोट की जो सेल डिविजन होती है, इवेंचुअली अ बेबी इज फॉर्म, दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस अंडर दिस माइटोसिस, जिसके अंदर आपके और दूसरे सेल्स फॉर्मेशन होते हैं. एंड वाई आई एम टेलिंग यू कि मियोसिस और माइटोसिस अभी ज़रूरी है, बिकॉज जब हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को रिलेट करेंगे विद द ह्यूमन जेनेटिक्स, देन यू माइट हैव टू नो अ बिट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो यहाँ तक अभी चीज़ें क्लियर है. नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अब हम एक बार फिर से थोड़ा सा डिफाइन करते हैं. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने कहाँ पढ़ा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जब F2 में मेंडल ने जो पी प्लांट थे विथ कैपिटल टी एंड स्मॉलर टी, उनके लिए उनको क्या मिला था? 3:1 के रेशियो में टॉलर एंड डॉफ प्लांट्स मिले थे. ठीक है, और इनका क्या कराया था उन्होंने? कैपिटल टी और स्मॉल टी का सेल्फ पॉलिनेशन कराया था. एंड उसके पहले उन्होंने जो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था उसमें क्या पता लगाया कि हो सकता है दिस स्मॉलर टी वाज द रेसेसिव वन दैट केम आउट इन दी F2. ठीक है, यानी कि ये दो मिक्सअप नहीं हुए. F2 में जब वो सेकेंड जनरेशन में आए तो इट रीअपियर्ड, जो रेसेसिव ट्रेट थे इट रीअपियर्ड इन सम फॉर्म, राइट. यानी कि मिक्स मैचिंग नहीं हुआ था. तो इसको आप कुछ उस तरीके से देख सकते हैं कि व्हेन यू से दैट देयर आर पेरेंट्स एंड देयर चाइल्ड इज हैविंग थोड़ा सा पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थोड़ा सा मदर का कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ हाइट, दैट मे नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जीन और एक पर्टिकुलर अलील अपने पेरेंट से लेगा, या तो वो लंबा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, मीडियम वाला. वैसी चीज़ें नहीं होंगी if the child is inheriting that particular allele from the parent. So what happened during the gamete formation? The allele for each gene segregate from each other such that each gamete formed carries only one allele for each gene. So what is allele? एलील अगर हम बात करें जीन, अगर आप मान लीजिए हाइट की हम बात कर रहे हैं कि हाइट वाला कोई जीन है, और हाइट क्या हो सकती है? टॉलर हो सकती है और शॉर्टर हो सकती है. ठीक है, यानी कि एलील क्या हो सकते हैं? टॉलर हो सकते हैं या तो शॉर्टर हो सकते हैं. जीन क्या है? आपकी हाइट हमने ले ली. तो व्हाट इज इट से इन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? इस एग्जाम्पल से आप समझे. सपोज हियर इज द कैपिटल टी एंड हियर इज द स्मॉलर टी. अब क्या होगा? अलग अलग जो आपके मियोसिस के स्टेजेस होंगे, उन स्टेजेस पे हमने बात की ना यहाँ पे, मियोसिस व्हेन द टू combines together. So जब meiosis के आपके process होंगे तो these two will separate from each other. Like what it is saying, gamete formation, the allele for each gene segregate from each other and that gamete formed carries only one allele for each gene. That means ये separate हो गए, यहाँ आ गया, this comes here, now again they will separate. यानी कि ये capital T है, ये smaller t है, then ये आपके capital T, this smaller t and smaller t. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि मिक्सअप नहीं होने वाला है कुछ, इट विल रिमेन इन द प्योर फॉर्म. सो अगर आप इसको समराइज करना चाहे, द टू फैक्टर्स और द अलील ऑफ अ ट्रेट यहाँ पे आप बात करें विच रिमेन्स टुगेदर इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्सड अप एंड कीप देयर आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एट अ टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस or sporogenesis, get randomly distributed to different gamete and then get paired again in different offspring as per the principle of probability. आपने देखा होगा ना, आपके हो सकता है कोई आपके जो भाई बहन हो, someone is taller, someone is shorter, depending upon आपके पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से. ऐसा तो है नहीं that all the offspring of a parent are having similar characteristics, सबकी हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन सभी कुछ सेम होगा, आई कलर सभी कुछ सेम होगा. इट माइट हैपन कि वो चेंजेस आ सकते हैं. एंड व्हाई दिस हैपन? बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी. वो जिस तरीके के भी आपके कॉम्बिनेशंस रहेंगे उसी तरीके का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, राइट. एंड सिंस दीज टू अलील रिमेन टुगेदर इन प्योर फॉर्म without mixing, affecting or blending each other, the law of segregation is also known as the law of
प्योरिटी ऑफ गैमेट. ऑलराइट, सो आप मेन फीचर्स में भी वही सारी चीज़ें लिख सकते हैं. ये थोड़ा डिटेल में है फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड कि हम उसको डिटेल में मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस बनाएं, उनके लिए वो चाहे तो इसको बना सकते हैं. ठीक है, बाकी वही जो हमने अभी समराइज करके चीज़ें बात की है यहाँ पे भी वही बताया गया है. ठीक है, कि जब कोई आपके डोमिनेंट और रेसेसिव एलील ऑफ अ जीन कम्स टुगेदर इन एन हाइब्रिड after crossing between two having contrasting characters, they do not mix or blend together. Similarly, taller और ये वाला आप मान लीजिए, and they separate into different gamete in equal numbers, and each gamete has only one type of allele. जो हमने यहाँ पे भी बात करी थी ना, ये वाला, ये equal number में separate कर रहे हैं, वही वाला ये कुछ डिटेल में same diagram है but in a detailed form. And the separation of two alleles of a gene during the gamete formation takes place usually due to the separation of homologous chromosomes during the meiosis anaphase because allele are located on the chromosome. तो अगर आप चाहें तो ये सारे phases को भी draw कर सकते हैं, but for someone who's from a नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड आप चाहे तो सिंपल वाला भी उधर वाला भी कर सकते हैं और मेन फीचर्स तो वही सेम ही रहेंगे. ठीक है, और ये उन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या रिजल्ट आया उसको यहाँ पे रिपीट किया गया, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन. और आपका जो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एग्जांपल है ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर, ये आप मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग से प्रूव. दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेज, so it basically says that the gene for the different traits assort independent of each other during the gamete formation. So we just saw जब हमने dihybrid crossing experiment देखा of the Mendel, in which हमने ये उसने ये प्रूव कर दिया उन्होंने that there is no kind of a package deal. ऐसा नहीं है कि if you are getting a taller height from your father, you will get the fairer skins of your father. It need not to be necessary. It might happen, but it need not to be necessary because it happened in an independent way. So similarly आप देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए there are like different genes, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए है, तो it need not to be necessary कि, और ये जितने भी है ये heterozygous है. ठीक है, because as you may see ये capital A small a, then ये capital B smaller b, then smaller c capital C, so they may get combined in any way. अब यहाँ पे आप देखिए capital B के साथ smaller a और smaller c है. Here with the capital A, you have the smaller b and the smaller c. During the meiosis, during the different distribution phases, right? तो ये कोई एक certain pattern नहीं follow करता है. It happens in a very random way. और इसको थोड़ा और डिटेल से समझने के लिए आप ये देखिए, because when you understand the entire process of meiosis and mitosis, you will see there is a metaphase. और मेटाफेज में आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट. जब सेल डिवीजन होता है उससे पहले ड्यूरिंग द मेटाफेज दे गेट अलाइंड एट द इक्वेटर. ठीक है, ये हमने थियोरेटिकली पढ़ा भी है. सो व्हेन दे गेट अलाइंड एट द इक्वेटर दे अगेन डू इट इन अ रैंडम वे. आप नहीं कह सकते कि ये अलाइनमेंट किसी सर्टन वे में होंगी. सपोज ये अलाइनमेंट इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से. एज यू मे सी, हो सकता है कि आपके ये सारे इस टाइप के जीन्स एक तरफ हो, अलग टाइप के जीन्स इधर हो, एंड इट मे हैपन्स कि ये जीन्स इस तरह से और ये जीन्स इस तरह से अलाइनमेंट करे. तो इट मे हैपन इन एनी वे. ठीक है, देयर इज नो सच फिक्स पैटर्न टू फॉलो. सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अगर हम बात करें तो after being satisfied with the monohybrid cross, Mendel took into consideration two pairs of contrasting character and studied their inheritance. Because उन्होंने अगर दो के ऊपर आप स्टडी नहीं करते तो आप सिंगल के ऊपर मोनोहाइब्रिड के ऊपर स्टडी करके ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि आपको तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं ना. So that is why according to the law the two factor genes of each contrasting characters assort or separate independently of the factor of other character. क्योंकि आपको प्रूफ तो दूसरे कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग में करना है, तो सिंगल कैरेक्टर यानी कि मोनोहाइब्रिड पे तो आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड आउट. इट इज बीइंग मेंशन्ड एज द मेन फीचर ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दैट आई वोंट एक्सप्लेन अगेन. ठीक है, जो हमने बात की है वही चीज़ें यहाँ पे करी जा रही हैं. सो नाउ हियर इज फूड फॉर थॉट. सी in this picture you can see all the bricks leader, and here just observe the phenotype, basically the height of these leaders. So can you say the one who's the taller will be dominating the other? Here Bolsonaro, Brazil ke jo president hai, he is the tallest, right? So does that mean he'll be dominating over other? That doesn't matter, right? आपकी हाइट क्या है, that doesn't matter whether you will be dominating or not. But what matter is the nature
of that particular allele. That is what we need to understand in the law of dominance. So as of now हमें law of dominance with the monohybrid experiment मेंडल ने जो किया था उससे पता तो है कि वो क्या है, in which the taller plant was dominating the shorter plant, or basically the dominant characteristic was like dominating over the recessive one. So what this law of dominance say, that some allele are dominant while the other are recessive. An organism with at least one dominant allele display the effect irrespective of the presence of the recessive one. हमने देखा था उसके अंदर कि उसके पास टी भी थे एंड स्मॉलर टी भी थे, ठीक है, even though the plant was showing the capital T का characteristics. So here to understand this law of dominance, ये nature वाला example मैंने इसलिए दिया because अगर आप इसको reverse करके भी देख ले, ये capital T dominant है and ये smaller t recessive है, but it may be possible कि ये capital T, अगर आप P plant को भूल भी जाए, it may be possible कि ये capital T was representing a dwarf character, ठीक है, तो जो P plants है वो dwarf होते, और अगर ये smaller t was representing the taller, सो जो पी प्लांट है उसमें ये रेसेसिव ट्रेट होता, बट जो विजिबल ट्रेट होता वो ड्रॉफ प्लांट का ही होता. इट डिपेंड्स कि आपका ये अलील कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी कर रहा है. इट डजंट मीन दैट टॉलर इज द सुपीरियर वन अमंग्स द शॉर्टर वन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. तो ये चीज़ क्लियर है, मतलब होनी भी चाहिए. यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, राइट. सो ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिखाई गई हैं कि हमने जब P1 जनरेशन में बात करी, सो P1 जनरेशन में आप मान लीजिए कि द मेल इज हैविंग these two dominant characteristics and the female is having these two recessive one. So जब गैमेट फॉर्मेशन में हमने देखा था कि सेपरेशन होता है और सेपरेशन के बाद आपके अलग अलग जो पिनेट स्क्वायर से भी आप देख सकते हैं जो फॉर्मेशन होते हैं. अगर हम पिनेट स्क्वायर भी इसका ड्रॉ कर ले फटाफट से, दिस कैपिटल टी एंड स्मॉलर टी फ्रॉम हियर हियर, तो आपके क्या होंगे, टी होंगे, टी होंगे, हियर ऑल्सो टी, हियर ऑल्सो टी. दैट इज वॉट जनरेशन आपका ये होगा. हमेशा आपका क्या डोमिनेट कर रहा है, द कैपिटल टी इज डोमिनेटिंग, ठीक है, बिकॉज वो डोमिनेंट ट्रेट है, नॉट बिकॉज वो टॉलर है या शॉर्टर है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. अब लॉ ऑफ डोमिनेंस को अगर आपको सिंप्लीफाई तरीके से लिखना है तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट. नाउ लेट्स क्विकली कैच अप विद द एप्लीकेशन ऑफ मेंडलिज्म. ऑफ कोर्स पेडिग्री एनालिसिस में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड इन मेडिको लीगल एप्लीकेशन यू कैन फाइंड जहाँ पे पेटर्निटी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी मेंडलिज्म का यूज़ किया जाता है. बेसिकली द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का यूज़ किया जाता है. मेडिकल एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है, जेनेटिक काउंसलिंग, हाइब्रिड वेराइटीज़. सो दीज आर लाइक फ्यू टू नेम, एंड देयर कैन बी लाइक मेनी अदर एप्लीकेशंस ऑफ मेंडलिज्म. सो एज एंड व्हेन लाइक यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट एंड आई लीव इट टू यू, ताकि आप भी थोड़ा सा इस चीज़ में एक बार एक्सप्लोर करेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा वो. देन मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. अब हमने ये तो देख लिया था दैट 1866 से अप टू लाइक 1900 मेंडल वर्क वाज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, मतलब साइंटिस्ट कम्युनिटी ने उसे एक्सेप्टेंस नहीं दी थी. सो व्हाई वाज इट? सो इसके कुछ रीजंस थे, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि आखिर इनको रिकॉग्निशन मिलने में कौन कौन से आप कह सकते हैं स्टेजेस आए. सो जब इन्होंने अपनी पेपर पब्लिश करी एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ द अनसीन फैक्टर्स नाउ कॉल्ड द जीन्स टू प्रेडिक्टिवली डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो बेसिकली जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, इन सब की बात करें तो दे आर ऑल जीन्स, लाइक एलील्स आपको जीन्स का ही पार्ट है ना. सो उन्होंने जीन्स के बारे में बताया था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज नॉट नेम्ड. DNA, जीन्स, क्रोमोसोम्स, इन सब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी. And the profound importance of mental work was not known until the turn of the 20th century. And three botanists, आपके ह्यूगो de Veres, कार्ल कॉर्नेस, एरिक वॉन, हमने जब सिंथेटिक थ्योरी भी पढ़ा था उसमें भी हमने डिस्कस किया था दैट हाउ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, प्री डार्विनिज्म और डार्विनिज्म, इन सब के जो कनेक्शन है हमने वो स्टैब्लिश किए थे. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंटरलिंक ही होती है. तो इन साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर करी थी मेंडल के वर्क को इंडिपेंडेंटली इन द सेम ईयर, अ सेंचुरी आफ्टर द मेंडल पब्लिश्ड हिज पेपर. ऑल्दो इनके अलावा भी और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे. इवेंचुअली ऑल दोज गॉट लाइंड अप एंड इनके वर्क को रिकॉग्निशन मिली. और मेंडल के जो नॉलेज थे
उसको साइंटिफिक कम्युनिटी में, लेकिन आप कह सकते हैं पहुंचाने का काम इन तीनों बॉटनिस्ट ने काफ़ी हद तक किया था. सो व्हाई दिस मेंटल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल 1900. सो बेसिकली इसके 3 मेजर रीजंस थे. ब्रॉडली आपको हर जगह यही रीजंस देखने को मिलेंगे. पहला तो ये दैट ही यूज स्टैटिस्टिकल मेथड and mathematical logic for the interpretation of the results, and these techniques were unfamiliar to most biologists of that period. We saw कि उन्होंने कुछ रेशियोज में बात करी थी, लाइक 3:1 का रेशियो दिया था, 9:3:1 का रेशियो दिया था. तो such a kind of a ratio and mathematical logics was not being accepted at that point of time by the biologist. उनको लगता था ये तो मैथ्स की फॉर्मूलाज और मैथ्स के लॉजिक यहाँ क्यों लगा रहे हैं, वी आर बायोलॉजिस्ट, वी हैव नथिंग टू डू विद इट. तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं उस टाइप की साइंटिफिक टेम्परामेंट जो था उस टाइम का, वो मेंडल से कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता था. दैट वाज वन ऑफ द रीजन. Another was Mendel did not have any physical evidence of the existence of variables. So basically what he did was some experiments with the pea plant. लेकिन उसको validate करने के लिए for the other species और उसके एक wider reach के लिए he did not have any valid physical evidences. Because उन्होंने कोई एक lab work तो किया नहीं था. He did not publish like a thesis on each and everything. Although उन्होंने paper publish करा था, but that is very different from what we expect in even in present day. ठीक है. और उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें थी तो फिजिकल एविडेंसेस ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट कर दिया गया, बिकॉज सब लोग तो प्रूफ ही मांगते हैं, राइट. एंड द माइंड ऑफ द बायोलॉजिस्ट वाज कंसर्न विद द डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, और यू कैन से द ब्लेंडिंग थ्योरी. ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट उस ब्लेंडिंग थ्योरी पे ही मानते थे, और ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने जो बातचीत कह दी थी उन पर ही उनका ध्यान केंद्रित था. और ये ब्लेंडिंग थ्योरी के बारे में हमने बात करी थी, like 2 different flowers giving certain characteristics with like a mixed type of characteristics. ठीक है. लेकिन हमने मेंडल में तो देख लिया कि मिक्स्ड नहीं होती है कुछ चीज़ें, या तो डोमिनेंट होगा, रेसेसिव होगा. ये मिक्स्ड वाला कंसेप्ट तो मेंडल ने दिया ही नहीं. ठीक है. तो ये कुछ अगर आपको लिखना हो कि मेंडल का वर्क क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया गया, तो यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट. नाउ हियर इज द टाइमलाइन ऑफ वेरियस स्टडीज रिलेटेड टू द जेनेटिक्स. एंड आई रिमेंबर आई टोल्ड यू बेसिक्स वाले लेक्चर में भी कि इफ़ यू वांट टू डिस्कवर मोर, आप ये तीनों को अपने आप से देख सकते हैं. एंड दिस वन आई ऑलरेडी कवर्ड इन द बेसिक्स वाला lecture, so you can watch this. In today's lecture we'll be covering this because here we will show that how this is related to the Mendel experiments. ठीक है. And we already saw that how this chromosomal theory of inheritance was being proved by the work on fruit flies. So I hope you are able to understand the sequences, right, and the importance of it. So what does this chromosomal theory of inheritance say? तो if you have to summarize कि ये chromosomal theory of inheritance क्या कहता था, तो it said that individual genes are found at a specific location on a particular chromosome, and the pattern of behavior of the chromosome during the meiosis explained as the Mendelian law as to why and how are genes inherited. So basically ये वही बात कर रहा है कि आपके जो क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनएज में कुछ जो जीन्स हैं एट पर्टिकुलर लोकेशन, वो किस तरह से इनहेरिट किए जाएंगे ड्यूरिंग द मेयोसिस, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द मेंडेलियंस लॉ. अगर हम इसको एक एक करके देखें मेंडल के हर लॉ के साथ रिलेट करके, देन इट विल बी मच मोर क्लियर. सो सी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का कहना था दैट द क्रोमोसोम्स कम्स इन पेयर्स और दे आर द होमोलोगस पेयर्स, and one chromosome from mother and one from father. This is true. और ये homologous pair है, हमने ये भी पढ़ा है. Other than the XY जो कि आपका मेल के लिए सेक्स क्रोमोसोम होता है, बाकी सारे क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस एंड इन पेयर. ठीक है. इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. देन वन क्रोमोसोम आपका मदर से होता है, अदर फादर से होता है. दैट इज़ द नोन फैक्ट. ये थोड़ा विजिबल नहीं है, तो दिस इज़ द क्रोमोसोम. ठीक है. ये इस तरह से है. अब ये 2 क्रोमोसोम्स है फ्रॉम फादर एंड फ्रॉम मदर. ये आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कह रहा है. हम इसी एक पूरे समराइजेशन को तोड़ तोड़ के यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है. देन मेंडल के वर्क ने क्या कहा था? मेंडल के वर्क ने कहा था फैक्टर्स, क्योंकि उस टाइम पे जीन वर्ड नहीं यूज़ किया जाता था, तो ही रेफर्ड द फैक्टर्स कम इन पेयर. ठीक है. जितने भी हमने फैक्टर्स देखे थे ये सारे पेयर में ही देखे थे. अकेले तो हमने ऐसे टी तो कहीं नहीं देखा, या केवल स्मॉलर टी तो कहीं नहीं देखा. हमने जब भी बात की हमने ये 2 फैक्टर्स की बात की थी. उस टाइम पे क्रोमोसोम जीन्स का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने नेमिंग नहीं की थी. वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर. दिस इज ट्रू.
हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट में यही देखा है, राइट? अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा से वो वाला पार्ट देखो, यू विल गेट क्लियर. नाउ chromosomal theory of inheritance और क्या कहती है? It says that the chromosome form a pair separate during meiosis, one chromosome in each gamete. ये वाला हमने जब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव किया था ह्यूमन जेनेटिक्स के पर्सपेक्टिव से, हमने तब देखा था, ठीक है? सो ये थोड़ा सा डार्क हो गया है तो दिख नहीं रहा है, सो दिस इज सिंगल, ठीक है? सो इसमें क्या है, आपके मियोसिस के प्रोसेस में हमने देखा किस तरह से डुप्लीकेशन होता है, किस तरह से सेपरेशन होता है, एंड दे ऑल गेट सेपरेटेड. आपका फैक्टर्स एलील भी इसी तरह से सेपरेट होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में. ऑलरेडी हम ये चीज़ पहले भी करके देख चुके हैं इसी लेक्चर में. देन आपके डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन द गैमेट, ये चीज़ भी हमने प्रूव कर ली है, राइट? एंड सेम आपका मेंडल का वर्क भी यही कह रहा है, एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. वो अलग अलग हो रहे थे, कोई सिमिलर नहीं होता. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी प्रूव ना, ये कुछ अलग चीज़ तो है नहीं. हमने अभी जब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ह्यूमन जेनेटिक्स वाला देखा था, उसमें हमने यही सारी चीज़ें प्रूव की थी. The reason why I have included it here so that you are able to set this thing in your mind कि हम कुछ अलग चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम वही चीज़ों की बात कर रही है but from different angle. If we have to see some exceptions to the Mendelism, so one of the best example is of the 4 o'clock flower. So basically these are 4 o'clock flowers. आपको ये बहुत different colors में देखने को मिलेंगे. And if we talk about the blending theory, remember? सो ब्लेंडिंग थ्योरी के अंदर हम बार बार ये एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं दैट देयर इज अ रेड फ्लावर, देयर इज अ वाइट फ्लावर, दे बोथ माइट रिजल्ट इन अ पिंक फ्लावर, ठीक है? सो कुछ इस तरीके का केस आपको यहाँ पे भी 4 o'clock के केस में भी देखने को मिलेगा. एंड बट दिस इज नॉट नोन एज ब्लेंडिंग बट रैदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, लिसन टू मी. सो इस केस में क्या होता है, आपका चूँकि पिंक है and pink has to do something with red also, because to get pink you need red color, right? So suppose if there is a homozygous dominant red flower and there is a homozygous recessive white flower, तो इस केस में क्या होगा, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है. जब कभी भी आप मेंडलिज्म के एक्सेप्शंस की बात करते हैं इन केस ऑफ 4 o'clock प्लांट, सो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा जिसके अंदर आपके जो एक्सप्रेशंस होंगे और जो ऑफस्प्रिंग्स निकल के आएगा दे आर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल. सो ये ए यहाँ से इसने लिया एंड ये रेसेसिव वाला ए यहाँ से लिया, बट ओ इवन दो दिस ए हैज़ टू बी डोमिनेंट, ये पूरा डोमिनेंस शो नहीं कर पाता. दिस शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट? और इस टाइप के एग्जाम्पल आपको और भी बहुत सारे वैराइटीज़ में देखने को मिलेंगे. प्राइम रोजेस, स्नैपड्रैगन, 4 o'clock, रेड एंड वाइट प्लांट आर homozygous while pink one are heterozygous. And the pink flower results because the single red allele is unable to code for the production of enough red pigment to make the petal dark red. ठीक है, यानी कि डोमिनेट तो करता है लेकिन ये सिंगल अगर हो सकता है, ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स इसको पास ऑन होते, और वो तो पॉसिबल है नहीं बिकॉज इट हैज़ टू गेट वन फ्रॉम ईदर पेरेंट, तो ये तो कोई एक ही पास ऑन होगा एंड जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर रहा है. तो दीज आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है? ऑल्दो तो अगर जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है इट हैज़ टू प्रिवेल, बट इन दीज केसेस इट इज़ नॉट. उसी तरह से ह्यूमन वॉइस में भी जो मेल बैरिटोन वॉइस होती है उसमें भी इस टाइप के एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ट्राई एंड फाइंड इट आउट कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द ह्यूमन वॉइस in terms of the Mendel genetics, ठीक है? That would be again a good task for you. Another exception is of the codominance. So this you can see in the blood groups. So first get back to the basics. जब हमने blood group के बारे में पहले बात कर रखी है, we know like whatever the antigenes that is present, आप blood group को उसी category से categorize करते हैं, right? So if there is antigen A, you have the blood group A. Same goes with the B, and similarly आपकी जो AB blood group है इनमें आपको दोनों एंटीजेंस देखने को मिलेंगे, एंड दिस ब्लड ग्रुप O हैज नो एंटीजेंस. सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू कीप इन माइंड दैट द ब्लड ग्रुप A and the blood group B, they are both dominant, right? And the O is the recessive one. So if there is a parent who's having A blood group and there's a mother who's having B blood group, sorry, the father is having A blood group, mother is having B blood group. So what are the blood group the child is going to have? Since both
the A and B are the dominant one, that is the codominance is present, the child will have the AB blood group, right? So this is one of the example that is being explained out here. So there are like other examples also. Let's see another one. So अगर आप इस hen को देखेंगे और cock को देखेंगे basically, so this cock is showing two different characteristics in terms of phenotype of color. तो आपको यहाँ पे whitish भी देखने को मिलेगा and there is the black color as well. अगर आप जो ये मुर्गे पालने वाले हैं उनसे पूछेंगे तो दे माइट टेल यू दैट देयर वाज अ ब्रीडिंग बिटवीन maybe a white mother with a black father or vice versa, ठीक है? ये कोई भी हो सकता है, मदर और फादर दोनों में से भी कोई ब्लैक फ्रेंड. बेसिकली इट्स बिटवीन द मेटिंग ऑफ अ ब्लैक एंड अ वाइट, सो दैट इज व्हाई इट रिजल्ट इनटू दिस, ठीक है? सो अब इसमें पॉसिबल केस सिनेरियो क्या होना चाहिए? What we read during the mental genetics, that if there is a BB and there is a WW, so अगर आप इनको अलग phenotypes में देखते हैं, so this B and this W will give us BW, so that आपके दोनों ही characteristics यहाँ पे dominant है. Again इस केस में भी आपको dominant मिल रहा है, इस केस में भी dominant मिल रहा है और इस केस में भी dominant मिल रहा है. This is when you have this white and black both as the dominant characteristics, because हम co-dominance की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर co-dominance नहीं होता, ये केवल dominant होता, तो you might have like smaller b or smaller w, any of these, ठीक है? So ये इस तरीके से follow किया. अगर इसी को आप F2 generation में भी लेके जाए, so F2 generation में what will happen? In this case scenario, you will have the B mating with, sorry, जब आपको यहाँ पे BW मिले हैं, so BW what you saw कि आपने इसी BW को फिर आपस में इनब्रीडिंग कराया, दैट इज व्हाट ही डन ना, जो उनके सेकेंड लेवल पे मेंडल ने किया था. सो मेंडल डिड द इंटरब्रीडिंग अगेन, तो उस केस में उनको BB मिलेंगे, BW मिलेंगे, BW एंड WW, ठीक है? ये बेसिकली अगर आप इससे समझना चाहे तो ज़्यादा बेटर होगा, दैट फ्रॉम वेयर ऑल दीज कमिंग फ्रॉम. तो हियर इट इज BW. So what you get double B, you get BW, you get BW and you get WW, ठीक है? So this is what you got if you went on to the filial 2 or the generation 2. So as per the Mendel, the ratio should be 3:1, but here the ratio is 1:2:1. So that means the ratio is not matching with what Mendel has said. So again it violated the Mendel experiment or the Mendel outcomes. So that is why these are called the exceptions, ठीक है? और ये आपको कोडोमिनेंस और एक हमने पहले भी देख लिया है, तो ये दोनों आप exceptions अगर लिखने के लिए पूछा जाए तो you can mention out. And with this we have completed this lecture, and I'll be taking up the next part tomorrow itself. Alright, so thank you so much.